नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Back then we decided to set up evening courts. This helped people attend court hearing after their work hours. This gave justice but also saved time and money. Hundreds of thousands of people benefited from this. Friends, India also has a unique concept of Lok Adalat. It means people's court. These courts provide a mechanism to settlement of small cases related to public utility services. This is a pre-litigation process. Such courts have resolved thousands of cases and ensured easy justice delivery. Discussions on such initiatives could be of a great value across the world. Friends, legal education is a key instrument in boosting justice delivery. Education is where both passion and professional competence are introduced to young minds. Worldwide, there is a discussion on how to bring more women into every domain. The first step to do so is to make each domain inclusive at the educational level. When the numbers of women in law schools increases, the numbers of women in the legal profession will also increase. Participants in this conference can exchange ideas on how more women can be brought into legal education. Friends, the world needs young legal minds who have diverse exposure. Legal education also needs to adapt to changing times and technologies. Our focus on understanding the latest trends in crime, investigation, and evidence will be helpful. Friend, there is a need to help young legal professionals with greater international exposure. Our finest law universities can strengthen exchange programs between countries. For example, India has perhaps the world's only university dedicated to forensic science. Students, law faculty, and even judges from various countries can be helped to explore short courses here. Further, there are many international institutions related to justice delivery. Developing countries can work together to get greater representation in them. Our students can also be helped to find internship at such institutions. This will enable our legal system to learn from international best practices. Friends, India inherited a legal system from colonial times, but in the last few years, we made a number of reforms to it. For example, India had done away with thousands of obsolete laws for colonial times. Some of these laws had the potential to become tools of harassment of people. This has boosted ease of living and ease of doing business. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए कि लीगल एजुकेशन में महिलाओं के सर्वोच्च गुणवत्ता और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा कहीं ना कहीं प्राथमिकता है। और अगर लीगल माइंड्स में महिलाओं की एंट्री होती है तो वो अपने सशक्तिकरण को और ज्यादा सुदृढ़ कर पाएंगे। तो चलिए सीधे रुक करेंगे लखनऊ का। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बजट सत्र को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारी संवेदना आप पहुंचाने की आपसे प्रार्थना करता हूं। महोदय, इसके साथ ही हमारे इस सम्मानित सदन के पूर्व माननीय सदस्य श्री मोबिन अहमद आजमी आजमगढ़ मऊ से,
से सतीश चंद आगरा से जटाशंकर सिंह बहराइच से मोहम्मद इरशाद खान लखनऊ से जगदीश गांधी अलीगढ़ वर्तमान में लखनऊ और डॉक्टर सुरेश संगल मुजफ्फरनगर जो इस सदन के पूर्व में सदस्य रहे हैं, आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं रहे। उनके दिवंगत होने का दुखद समाचार भी हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं सदन की ओर से उन सभी पूर्व सदस्यों के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक संवेदना शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की आप कृपा करेंगे। धन्यवाद। नेता समाजवादी पार्टी श्री मनोज पांडे जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन से अपने को संबद्ध करते हुए निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत दुखद है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे माननीय सदस्य मानवेंद्र सिंह जी का 5 जनवरी 2024 को दुखद निधन हुआ। माननीय मानवेंद्र सिंह जी जिनका 5 जनवरी 2024 का निधन हुआ, वो लगभग 65 वर्ष के थे। श्री मानवेंद्र सिंह जी का जन्म 1 अप्रैल 1959 को ग्राम ढकिया। तो देखिए, जब भी सत्र की ओपनिंग होती है तो सबसे पहले कंडोलेंस व्यक्त किया जाता है उन तमाम सदस्यों के लिए जो सत्र में नहीं मौजूद हैं, यानी कि उनका देहावसन हो चुका है, जिनकी देह बीत चुकी है। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि फिर सीएम केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। केजरीवाल को समन देने के लिए ये टीम पहुंची थी। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है। इसी संबंध में क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को समन देने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था और इसके बाद बीजेपी एक्शन में आई और उन्होंने कहा कि ये हमारी मानहानि है, सम्मान का हनन है और अगर खरीद फरोख्त हुई है और प्रमाण है आम आदमी पार्टी के पास तो सौंपे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल को समन देने के लिए टीम पहुंची है। फिर सीएम केजरीवाल के घर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। लेकिन खास बात क्या है, समन देने के लिए पहुंची है पर माफ कीजिएगा, समन दे नहीं रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। भावना सिसोदिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। भावना, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो तस्वीरें बहुत ज्यादा क्लेरिफाई नहीं कर रही हैं कि आखिरकार क्षेत्र में घटनाक्रम क्या घटित हो रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम कल पहुंची, क्राइम ब्रांच की टीम आज पहुंची। अधिकारी हैं, अधिकारी के हाथ में कुछ कागज मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कागज जो है वो आगे बढ़ा नहीं रहे। क्लियर फाइल में वो कागज साफ नजर आ रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि एमएलए खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी और उन्होंने शिकायत दी थी कि आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत की और उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश की है। इसी मामले को लेकर जो क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा हैं, वो कल और भी अधिकारियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर भी वो नोटिस देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कल नोटिस नहीं दिया था। उसके बाद आज सुबह भी जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो नोटिस देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वजह ये बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ से तो नोटिस की रिसीविंग दी जा रही है, लेकिन जब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को कहा जा रहा है नोटिस की रिसीविंग देने के लिए, तो नोटिस की रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो है नोटिस रिसीव नहीं किया जा रहा है। पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा जो एमएलए की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है, उसी में जिस तरीके से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, ऑडियो क्लिपिंग है, जिसके माध्यम से वो साफ कर सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और अपना देखिए भावना, इस बीच हम कुछ ऐसे फुटेज भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे।
ये फुटेज जिसमें अधिकारी कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं, एक बार कैमरे के सामने आ रहे हैं फिर पीछे चले जा रहे हैं और कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं। इनके क्या मतलब निकाले जाए? भावना। जी देखिए, इस चीज़ से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो कैमरे की नज़र से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल देर शाम यहाँ पर अधिकारी पहुँचते हैं लेकिन नोटिस नहीं दिया जाता। पूरा इल्ज़ाम यही आम आदमी पार्टी की तरफ से यही लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो केवल बदनाम करना चाहती है आपकी छवि को। केंद्र के इशारों पर जो है दिल्ली पुलिस चल रही है, इसलिए नोटिस देने तो आते हैं लेकिन नोटिस देकर नहीं जाते हैं। और असली वजह ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है, जब सीएम हाउस जो है, सीएम मुख्यालय, सीएम का जो निवास स्थान है, वहां पर जब नोटिस को रिसीव करने के लिए तैयार है तो आखिरकार क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है रिसीविंग क्यों नहीं दी जा रही है। अहम सवाल ये भी उठता है, अगर किसी पर्याप्त सबूत को लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारी पहुंचे हैं, तो रिसीविंग क्यों नहीं दी जा रही है? कहीं ना कहीं एक इस बड़े सवाल को भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिसीविंग ना देना और सीएम हाउस से रिसीविंग मांगना कहीं ना कहीं ये भी जरूर साबित करता है कि दाल में कुछ जरूर काला है। और साफ साफ आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर भी भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है कि पुलिस को यहाँ पर भेजा तो है, पुलिस के अधिकारी जो है कैमरे से बचते हुए तो नजर आ रहे हैं। अगर आप केजरीवाल के आवास के आसपास मौजूद हैं, सीएम हाउस के आसपास मौजूद हैं, तो एक बार थोड़ा सा कैमरे को पैन करवाइए और दिखाइए कि क्या कुछ तस्वीरें मौजूदा समय में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अधिकारियों की जो टसल है सीएम हाउस में, सीएमओ में, वो हम देख पा रहे हैं, लेकिन सीएम हाउस के आसपास क्या कुछ और है वो बताइए। जी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सीएम निवास की जो घर की शुरुआत है वहां पर ही अधिकारी खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है। और ये जो वेटिंग एरिया है, इस वेटिंग रूम के अंदर ही जो है जो एसीपी पंकज अरोड़ा है क्राइम ब्रांच के, अपने 2 और अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं रिसीविंग को लेकर जो है मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नोटिस लेने को तैयार तो हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि या तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस नोटिस को रिसीव करेंगे या फिर परिवार का कोई करीबी इस नोटिस को रिसीव करेगा। आप देख सकते हैं पुलिस भी तैनात की गई है, साथ ही साथ सुरक्षा का भी काफी ध्यान रखा गया है, क्योंकि सीएम आवास की और आने वाले दोनों ही रास्तों पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का पूरा इंतजाम ध्यान रखा गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो अधिकारी हैं बस केवल वही अधिकारी जो है वो इस वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं नोटिस रिसीविंग का इंतजार कर रहे हैं। भावना, क्या आप वेटिंग रूम के आसपास तक जा सकती हैं? कैमरे को वहां तक प्लीज शिफ्ट कीजिए, अगर हो सकता है तो प्लीज। जी मैं प्रयास करूंगी कि एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वेटिंग रूम के आसपास, क्योंकि कड़ी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन यही वो वेटिंग रूम है जहां पर अधिकारी जो हैं नोटिस देने के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा का देख सकते हैं आप, जैसे जिस तरीके से तस्वीरों में मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसके कारण से रोकने का बार जो सुरक्षा इंतजाम। बहुत शुक्रिया भावना, आपने बहुत बेहतरीन तस्वीरें साझा करी है हमारे साथ में। तो देखिए, अहम तथ्य आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम घटित हो रहा है। और खास बात क्या है कि रिसीविंग लेने के लिए सीएम हाउस में लोग तो मौजूद हैं, लेकिन रिसीविंग दी नहीं जा रही है। कल भी जो है क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, आज फिर पहुंचती है नोटिस देने के लिए, लेकिन नोटिस नहीं थमाई जा रही है, रिसीविंग नहीं दी जा रही है। क्या कुछ घटनाक्रम है, समझिए। बहुत शुक्रिया भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब माया नगरी मुंबई का रुख करते हैं। ठाणे में गोलीबारी हुई है, बड़ा अपडेट उसमें सामने आया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आपको पूरा मामला बता दें कि ठाणे में बीजेपी विधायक ने पुलिस स्टेशन में शिवसेना नेता पर गोली चला दी है। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ पर 4 गोली दागी है। शिंदे गुट के नेता बुरी तरीके से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद है। गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उनके सहयोगियों पर हमला किया 2 दिन पहले। इसी जमीन के विवाद को लेकर के दोनों पार्टी के नेता आमने सामने हुए थे, नोकझोंक भी हुई थी। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।